नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के कोहड़ा मुकाम पर इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रूट मार्केट और सब रजिस्ट्रार ऑफिस कॉम्प्लेक्स का रखा संग बुनियाद और खिताब में मरकज़ और BRS पर की तनकीद। रियासत भर में तामीर किए जा रहे इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की बसीरत के मंदिर है। खम्मम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। मैंने हाइड्रा का नाम हिटलर के पसंदीदा लफ्ज़ हाइड्रा से मुतासिर होकर रखा था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस बयान पर सियासी हलकों में बहस। रेवंत रेड्डी के हाइड्रा से मुताल्लिक़ बयान पर KTR की शदीद तनकीद। कहा हिटलर ही रेवंत रेड्डी की असल तहरीक है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज़ की तारीख में तब्दीली का किया ऐलान। अब स्कूल 15 जून से दोबारा शुरू होंगे। हैदराबाद के KPHP कॉलोनी में वाक़ एक पब पर कुकटपल्ली DCP ने मुबैना तौर पर सादा लिबास में खुफिया किया मुआयना। कई अफराद गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कोहेड़ा के मुकाम पर इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रूट मार्केट और सब रजिस्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। बाज़ाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए मरकज़ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मेट्रो रेल तोसी मनसूबे की मंजूरी और धान की ख़रीदारी में ताख़ीर नाकाबिल क़बूल है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फार्म हाउस में बैठे KCR के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन मनसूबे को कौमी दर्जा दिलाने, मेट्रो रेल की तोसी और नए हवाई अड्डों के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने BRS पर तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाया और ऐलान किया है कि कोहेड़ा फ्रूट मार्केट को आलमी मियार के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जबकि कंदुकूर इलाके में टमाटो सॉस फैक्ट्री भी कायम की जाएगी। ఈ రోజు పాలు పండ్లు కూరగాయలే కాదు, ఈ రోజు కొత్తిమీర కరివేపాకు కొనుక్కోవాలన్నా పక్క రాష్ట్రాల నుంచో పక్క దేశాల నుంచో దిగుమతి చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది। ఈ రోజు మన రైతాంగం ఇవి పండించకపోవడం వల్ల మన రైతాంగం వడ్లు, మక్కలు, జొన్నలు, పరిమితమైన పత్తి, మిర్చి ఈ 4-5 పంటలే పండించడం వల్ల ఈ రోజు విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరిగి ఈ రోజు ప్రజల కష్టాలు తీర్చలేవు। కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి। పేదవాడు బజార్లోకి సంచి నిండా రూపాయలు తీసుకెళ్తే జేబులో కూరగాయలు తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఈ రోజు మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో ధరలు పెరిగినాయి। అందుకే ఈనాడు ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా మన ప్రాంతాన్ని 30-40 ఏళ్ల క్రితం ఏ విధంగా అయితే కలకలలాడిందో వ్యవసాయంతో ఈ ప్రాంతంలో ఫ్రూట్ మార్కెట్ తో పాటు మంచి మంచి తోటలు పెట్టాలి। మామిడి పండ్లు, బత్తాయి పండ్లు, మోసంబి పండ్లు ఇట్లా ప్రతి ఫ్రూట్ మన ప్రాంతంలో ఈ రోజు పండించాలి। కందుకూరు ప్రాంతంలో టమాటాలు పండిస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి। ఆ ప్రాంతంలో ఒక సాస్ కంపెనీ, సాస్ ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీని కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అదే విధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఈ రోజు ఫ్రూట్ మార్కెట్ కోసం మనం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని కొంతమంది అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। నేను ఇవాళ రంగారెడ్డి జిల్లా సోదరులతోని నేను అడగదలుచుకున్నా, 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండి మీ కష్టాలకు కారణమైన వాళ్ళు ఇవాళ మనము భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఆనాడు కాలుష్యం వెదజల్లే ఫార్మా పరిశ్రమలను తెస్తా అంటే మీ ప్రాంత ప్రజలకు జీవన ప్రమాణాలు పడిపోయి ఈ కాలుష్యం వల్ల మీకు ఇబ్బంది జరుగుతుందని ఈ కాలుష్యాన్ని తరలించి ఈ రోజు ఒక గొప్ప నగరాన్ని తీర్చిదిద్దాలనుకున్నాం। ఈ రోజు హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో 237 కోట్ల రూపాయలకి ఎకరం అమ్ముడు పోతుందంటే ఆ ఏరియాల IT కంపెనీలు, అదే విధంగా ఫార్మా కంపెనీలు, GCC సెంటర్లు వచ్చినందుకు ఈ రోజు ఆ భూముల విలువ పెరిగింది। ఇవాళ అందుకే ఒక మహానగరాన్ని నిర్మించి ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలు, ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన కంపెనీలు మీ అంతర్జాతీయ నగరానికి తీసుకురావాలని, ఈ ప్రాంతంలో కాలుష్యం లేని పరిశ్రమలను తీసుకురావాలని, ఈ ప్రాంతంలో ప్రజల అవసరాలను తీర్చే అభివృద్ధిని చెయ్యాలని మనం కంకణం కట్టుకొని బయలుదేరితే నిన్న మొన్న BRS వాళ్ళు కారు గుర్తోళ్ళు వచ్చి కోయడా ఫ్రూట్ మార్కెట్ కట్టడానికి వీల్లేదంటారు, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని రద్దు చేస్తామంటారు, రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మించడానికి వీల్లేదంటారు।
రీజనల్ రింగ్ రైలు అవసరం లేదంటారు, వరంగల్లో ఎయిర్పోర్టు అవసరం లేదంటారు, ఆదిలాబాద్ లో ఎయిర్పోర్టు అక్కర్లేదంటారు, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసి రంగారెడ్డి జిల్లా వరకు నీళ్లు తరలిస్తామంటే ఆ ప్రాజెక్టు కూడా తక్క మట్టి తీయడానికి వీల్లేదంటారు. మహారాష్ట్రతో మాట్లాడి తుమ్మిడిఎట్టి దగ్గర గోదావరి జలాలను శ్రీపాదెల్లంపల్లికి తీసుకొస్తామంటే అది కూడా నిర్మించడానికి వీల్లేదంటారు. ఇవాళ నేను అడుగుతున్న మిత్రులారా, ఆ 10 ఏళ్లు మనం కొట్లాను ఫ్రూట్ మార్కెట్ కట్టమని, పరిశ్రమలు కాలుష్యాన్ని వెదజల్లే వాటిని తరలించమని, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కావాలని, వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని, ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని, అభివృద్ధి చేయమని ఆనాడు మనం రోడ్డెక్కితే ఈనాడు ఈ అష్ట దరిద్రులు మనం ఏ అభివృద్ధి చేస్తామన్నా అడ్డుకుంటామని రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నాలు రాస్తా రోకోలు చేస్తున్నారు. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत भर में तामीर किए जा रहे इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की बसीरत की मंदिर है। उन्होंने खम्मम ज़िले के लक्ष्मीपुर में ज़ेर तामीर स्कूल का मुआयना करते हुए तालीम को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। भट्टी विक्रमार्का ने हुकाम को हिदायत दी है कि साइंस, रियाजी, कंप्यूटर और मैकेनिकल लैबोरेटरियों समेत तमाम तामीराती काम आला मियार के साथ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया खर्च नहीं बल्कि मुस्तकबिल की नस्लों में एक अहम सरमायाकारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेंगलुरु में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हैड्रा का नाम उन्होंने हिटलर के पसंदीदा लफ्ज़ हैड्रा से मुतासिर होकर रखा था। इनके इस बयान पर सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है, जबकि कई कायदीन ने इस पर एतराज़ भी किया है। वज़ीर आला ने कहा कि हैड्रा तजावीज़ात के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई के लिए क़ायम की गई है और इसकी क़ियादत एक सीनियर IPS अफसर कर रहे हैं। उन्होंने एजेंसी की कार्रवाइयों का दिफा करते हुए कहा कि गैर कानूनी तजावीज़ात के ख़ात्मे के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी है। ताहम इस बयान और हैड्रा की कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनक़ीदें भी सामने आ रही है। Hydra, the word is Hitler's favorite word, Hydra. His core team called Hydra, who can assassinate anyone. So I have taken inspiration from Hitler. I have named as a Hydra. BRS के कारगुजार सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हैड्रा से मुताल्लिक़ बयान पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि हिटलर ही रेवंत रेड्डी की असल तहरीक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैड्रा अवाम के घरों और रोज़गार को निशाना बनाने वाली एक तबाही एजेंसी बन चुकी है, जो आमिराना तर्ज़ हुक्मरानी की अलामत है। KTR ने कहा कि BRS की नज़रियाती बुनियादें डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी और प्रोफेसर जयशंकर के नज़रियात पर कायम है, ना कि हिटलर जैसे आमिर पर। उन्होंने कांग्रेस क़ियादत से सवाल किया कि क्या वो एक जमहूरी मुल्क में हिटलर को बतौर तहरीक पेश करने वाले वज़ीर आला के बयान की क्या तायद करती है, और कहा कि तेलंगाना के अवाम आमिराना तर्ज़ हुक्मरानी को मुस्तरद कर देंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज़ की तारीख़ में तब्दीली का ऐलान किया है। पहले स्कूल 12 जून से खुलने वाले थे, ताहम अब इन्हें 15 जून से दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक 13 जून को दूसरा हफ्तावार तातील और 14 जून को इतवार होने के बायस ये फ़ैसला किया गया है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि 13 जून की तातील के बदले 11 जुलाई दूसरा हफ्ता को वर्किंग डे करार दिया जाएगा और इस दिन तालीमी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। हैदराबाद के KPHP कॉलोनी में वाक़ई किंग्स एंड क्वीन पब पर कुकटपल्ली DCP रीति राज ने मुबैना तौर पर सादा लिबास में खुफिया मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने बग़ैर सिक्योरिटी अमले के पब के अंदर सरगर्मियों का जायज़ा लिया और शवाहिद जमा करने के बाद मुकामी पुलिस को कार्रवाई की हिदायत दी। बाज़ पुलिस ने पब पर छापा मारकर कई अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि पब मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक ग्राहकों को राग़िब करने के लिए नामुनासिब सरगर्मियों की शिकायत मौसूल हुई थी। ज़राए के कहना है कि DCP ने मुकामी पुलिस की कारकर्दगी पर भी नाराज़गी का इजहार किया। संगारेड्डी ज़िला पुलिस दफ्तर में सपोर्टिंग प्रोफेशनल एंड एकेडमिक राइस फॉर खाकी पर्सनल एंड किड्स प्रोग्राम के तहत पुलिस एहलकार और इनके बच्चों के लिए
एक खुसूसी रहनुमाई प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर व दीगर अफसरान ने अपनी कामयाबी की कहानियाँ बयान करते हुए मुसाबिक़ती इम्तहानात की तैयारी और आला अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत, मुस्तक़बिल मिजाजी की अहमियत पर जोर दिया। ज़िला SPP पंकज ने कहा कि कामयाबी के लिए मनसूबाबंदी, वक्त की पाबंदी और मुसलसिल मेहनत ज़रूरी है। उन्होंने पुलिस एहलकारों और इनके बच्चों को बड़े ख्वाब देखने और नाकामियों से मायूस हुए बगैर अपने मकसद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने की तलक़ीन की। Part of the preparation లో part. I have seen Pratyusha train and నేను కూడా ఏడ్చుకుంటాను. ఆ ప్రిపరేషన్ లో at a certain point will be very low. కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది, ఏడవాలనిపిస్తుంది ఉంటుంది. బికాస్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ లైక్ దట్. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా విల్ హ్యావ్ దోస్ డేస్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దెమ్ బై కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, నేను గట్టిగా ట్రై చేస్తాను, ఎలా అయినా వస్తుంది. రాదేమో అన్న డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది, మా అందరికి కూడా ఉంది. ఆ ప్రిపరేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్, వస్తే బాగుంటుంది. How to come out from low position and how to control your emotions. So under there are story unnai. I also have story how I dealt with my failures. Okay, under there, but if I will tell your SP sir ki koncham exaggerate ga check sir. No, these are reality. Everyone has seen low. Okay, no, I have also seen low. In my second attempt when I gave interview, I was sitting at the time of result because you get to know that today result is coming very fast. Maybe after 13 or after 14 years. I was just sitting in Bangla Sahib Gurdwara. I was just praying there. At least I should clear this. And result came and I couldn't clear. Then again I sat for next 2 hours there only. I switched off my phone and I sat there only. And from there I got the motivation. Then I again started. And third interview I got it. Okay now. So don't think he means all those who are sitting here, they are like from beginning only they are facing, they are seeing success only. No, that is not the case. Everyone has seen failure here. That's why you have to overcome your emotions, you have to control them and utilize them positively. मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और खून का अतिया करने वालों को मुबारकबाद पेश किए। MP ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर कार्ड्स भी तकसीम किए और मुस्तहिक़ अफराद को हुकूमत की फलाही स्कीमों से भरपूर इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया। మరి నిజంగా ఈరోజు గౌరవనీయులు సాదరంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ మరి ఏనుగు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి యొక్క జన్మదినం సందర్భంగా మరి ఈరోజు జిల్లా SSC అధ్యక్షులు కరుణాకర్ అన్న గారు, అదేవిధంగా విక్రమ్ రెడ్డి అన్న, రమేష్ నాయుడు అన్న, వీరు ముగ్గురు ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ ని మరి ఈరోజు మరి బహుమతిగా ఇస్తున్నారు. మరి వారికి కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి విచ్చేసినటువంటి ప్రియతమ నాయకులు మరి మన మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు पटेंचर असेंबली हल्के में तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ कलवा कुंटला कविता ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने पटेंचर में पार्टी का झंडा भी लहराया और कारकुनों से खिताब करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। गाय के नाम पर बेगुनाह अफराद खुसूसन मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम के ख़िलाफ़ 7 जून को आज एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गौ रक्षकों के नाम पर होने वाले हमले क़ानून और इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जिन्हें रोकने के लिए मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये इजलास आज इतवार 7 जून को सुबह 11 बजे जामिया निज़ामिया गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जहाँ मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों ने लाहे अमल पर गौर किया। बाज़ाए सिलसिले में ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मीडिया को तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, आज मीडिया प्लस में एक अहम उन्वान पर कुल जमाती इजलास मुकर्रर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जमातों के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक रहे। इसका अहम मसला ये था कि गौ के नाम पर
बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है और नाम निहाद गौ रक्षा के नाम पर न सिर्फ गाय को अपना कारोबार बना रहे हैं बल्कि मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके तदारुक के लिए क्या जो ना इक़दाम करना चाहिए। तो हम इस इजलास में ये तय किए हैं कि सबसे पहले हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देना है कि वो ये नाम निहाद गौ रक्षकों को खुली छूट क्यों दी गई है, जबकि मरकज़ी सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि हम बीफ पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे। तो अब इनके वजूद का कोई माना नहीं रह जाता। और दूसरी अहम बात यह है कि ये मुसलमानों से गाय को रुकवा कर इनका मकसद कारोबार को बढ़ाते हुए इसको एक्सपोर्ट करना है और ये एक्सपोर्ट करने की वजह से इससे का फ़ायदा हुकूमत को होगा, अवाम को नहीं होगा। तो ये पॉलिसी यहाँ पर जो है ना कौम की भलाई के लिए नहीं है, गांव की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट करके इसके लाखों रुपए कमाने का हुकूमत का मंशा है। हम ये बात जो है ना पूरी सबके सामने आ चुकी है। तो लिहाजा आज हम ये फैसला किए हैं कि हम ये मुतालबा करते हैं और तमाम जो है ना कौम को ये चाहिए कि हमारे तेलंगाना में जो 2 बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, एक अल कबीर है, दूसरे अल आना है, तो हम इसको जो ना बंद करने का मुतालबा करते हैं। और अगर इसको बंद नहीं किया गया तो हम इनके खिलाफ यहाँ से मार्च करेंगे और वहाँ पर जाके हल्ला बोल देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जानवर वहाँ पर जो ना जुबा किए जाते हैं। वहाँ पर जो ना गौ रक्षकों की वहाँ पर पहुँच नहीं होती, उनको वहाँ पर अम्मा याद नहीं आती, बाबा याद नहीं आते। ये निहत्ते बेखुसूर मुसलमानों पर इसको जो ना कत्ल किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत को हम वार्निंग देते हैं कि अगर इस पर ठोस इक़दाम नहीं किया गया तो हम भी गौ रक्षकों का मुतबादिल हम भी तैयार कर सकते हैं। हुकूमत ये कान खोल के सुन ले, अगर ये गौ रक्षकों पर पाबंदी नहीं आयद की गई तो हम अपने बचाव के लिए कानून के दायरे में हम इसका मुतबादिल भी हम बना सकते हैं। हमको मौका मत दीजिए और बीफ एक्सपोर्ट को जो ना बंद होना चाहिए, हम ये मुतालबा करते हैं। तेलंगाना जागृति के एक वफ्द ने सरबराह कल्वा कुंटला कविता की हिदायत पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर गोशा महल के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने के इल्ज़ाम में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। वफ्द ने इल्ज़ाम आयद किया कि राजा सिंह ने एक बयान में मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, जिससे समाजी हम आहंगी मुतासर हो सकती है। वफ्द ने मुतालबा किया कि रियासत ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इनके खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम मोहतरमा कविता साहिबा की हिदायत पर तेलंगाना जागृति का वफद आज मोहतरमा कविता साहिबा की हिदायत पर CP ऑफिस पहुंचकर मल्लून राजा सिंह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। कल उसने एक मीडिया से इंटरव्यू देते हुए मुसलमानों की सख्त तौहीन की। जब भी वो ज़बान खोलता है यानी बेहुदा बातें ही उसकी ज़बान से निकलती हैं। हम सज्जनर साहब से अदबन दरख्वास्त करते हैं कि उसकी ज़बान को लगाम कसें। और कल जो उसने कहा कि जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं वगैरह वगैरह, जितनी भी उसने नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, हम उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसे फ़ौरन हिरासत में लिया जाए ताकि रियासत में अमन व अमान बरकरार रहे। कल हमने देखा कि चंद मुस्लिम कायदीन की जानिब से रैलीज भी निकाली गई। मुस्तकबिल में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रियासत में और शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए उसकी ज़बान पर लगाम कसें। जय तेलंगाना, जय कविता। जय कविता। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना जागृति की तरफ से हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे तेलंगाना जागृति की सदर श्रीमती कल्वा कुंडला कविता गारू की हिदायत पे हम लोग सब यहाँ पे आए हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये शख्स MLA राजा सिंह जो कि गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है। उसने मुसलमानों के ख़वातीनों के खिलाफ जो नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, किसी भी मज़हब की ख़वातीन जो है सो कोई एक मजाक का मौजू या फिर जो है सो एक सियासी मौजू नहीं बन सकती। जब भी वो मुंह खोलता है तो अपने मुंह से सिर्फ गिलाज़त ही बकता है। तो मैं सज्जनर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी ज़बान को जो है सो लगाम दे और उसको फौरी तौर पे अप्लीकेबल सेक्शन ऑफ लॉ के तहत उसको एक FIR की जाए सख्त से सख्त और उसको रिमांड में डाला जाए। जज़ाकल्लाह खैरन। जय तेलंगाना, जय कविता का, जय जागृति। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद नॉर्थ के ज़रिए एहतमाम मस्जिद इशाअत इस्लाम लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में एक खिताब आम बउनवान हालात हाज़िरा और उम्मत मुस्लिमा
6 जून बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क अज़ीज़ के मायनास व मारूफ मुक़र्रिर मौलाना वलीउल्लाह सईदी फ़लाही नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद नई दिल्ली ने खिताब किया। अमीर मुकामी ज़हीराबाद नॉर्थ मोहम्मद कैसर गौरी ने इफ्तिताई कलिमात में मेहमानान का तारुफ पेश करते हुए खैर मकदम किया। मुकाम अमीर हल्का तेलंगाना MN बेग जाहिद ने दुआ फरमाई। निज़ामत मोहम्मद मोइनुद्दीन मामून नाजिम ज़िला संगारेड्डी मगरिब ने की। इजहार तशक्कुर सैयद इम्तियाज़ तंजीमी सेक्रेटरी ज़हीराबाद ने पेश किया। इस मौके पर मामून अमराय हल्का तेलंगाना हाफिज़ रिशादुद्दीन मोहम्मद सादिक अहमद नाजिम ज़िला संगारेड्डी मगरिब व दीगर मौज़िज़ीन शहर व नौजवान की इस्तेदाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के कोहड़ा मुकाम पर इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रूट मार्केट और सब रजिस्ट्रार ऑफिस कॉम्प्लेक्स का रखा संग बुनियाद और खिताब में मरकज़ और BRS पर की तनकीद। रियासत भर में तामीर किए जा रहे इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की बसीरत के मंदिर है। खम्मम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। मैंने हाइड्रा का नाम हिटलर के पसंदीदा लफ्ज़ हाइड्रा से मुतासिर होकर रखा था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस बयान पर सियासी हलकों में बहस। रेवंत रेड्डी के हाइड्रा से मुताल्लिक़ बयान पर KTR की शदीद तनकीद। कहा हिटलर ही रेवंत रेड्डी की असल तहरीक है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज़ की तारीख में तब्दीली का किया ऐलान। अब स्कूल 15 जून से दोबारा शुरू होंगे। हैदराबाद के KPHP कॉलोनी में वाक़ एक पब पर कुकटपल्ली DCP ने मुबैना तौर पर सादा लिबास में खुफिया किया मुआयना। कई अफराद गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।